بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1623 ہے اور آج سورہ لقمان کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَئِن اور البتہ اگر سألتہم آپ پوچھیں ان سے، من خلقا کس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، لیقولن تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، اللہ نے، قل کہہ دیجئے الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں کے لا یعلمون نہیں جانتے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں، ان اللہ بے شک اللہ، هو الغنی وہ بہت بے پرواہ، الحمید قابل تعریف ہے، ولو اور اگر انا بے شک جو بھی فی الارض زمین میں ہیں، من شجرۃ درخت، اقلام و قلمیں ہو جائیں، والبحر اور سمندر سیاہی بن جائے، یمدہ سیاہی کو زیادہ کر دے، من بعدہ اس کے بعد 7 ابحر 7 سمندر، تو بھی ما نفیدت ختم نہ ہوں کلمات اللہ اللہ کے کلمات، ان اللہ بے شک اللہ عزیز نہایت غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ما خلقکم نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ مگر ایک جان کے مانند، ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو جائیں، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، دوسری بات تو وہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے، تیسری بات ان کے جواب پر آپ الحمدللہ کہیے اے پیغمبر، چوتھی بات اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے، پانچویں بات اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، چھٹی بات اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے اور بذات خود قابل تعریف ہے، ساتویں بات اگر زمین میں جتنے درخت موجود ہیں وہ سب قلم بن جائیں،
आठवीं बात, ये मौजूद समंदर और उसके अलावा और 7 समंदर अगर सियाही बनकर अल्लाह ताला की सिफात लिखते चले जाएं तब भी अल्लाह की तारीफें खत्म ना हों। अल्लाह अकबर। नवीं बात, हकीकत यह है कि अल्लाह ताला इक़्तिदार का भी मालिक है और हिकमत का भी। 10वीं बात, तुम सबको पैदा करना और दोबारा जिंदा करना अल्लाह ताला के लिए ऐसा ही है जैसे कि किसी एक इंसान को पैदा करना और दोबारा उसको जिंदा करना। 11वीं बात, यकीनन अल्लाह ताला हर बात सुनता है, हर चीज देखता है। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि पैगंबर, अगर आप उनसे पूछें कि यह आसमान जो तुम देख रहे हो और यह जमीन जिस पर तुम चल रहे हो यह किसने बनाए हैं, तो वो ये लोग जवाब देंगे कि तो अल्लाह ताला ही ने बनाया है। यानी ये काफिर लोग इस बात का इकरार करते हैं कि उनके माबूदाने बातिल में, यानी जिन बुतों की यह इबादत कर रहे हैं, उनमें इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि वो कोई चीज बना सकें। कह जाए कि जमीन और आसमान तो बहुत दूर की बात है। अलबत्ता ये काम एक खालिक और मालिक अल्लाह का है। जब और आप इन काफिरों से ये बात सुन लें कि वो जब एतराफ और इकरार करें कि ये सब अल्लाह ही ने बनाया है, तो आप कहिए उनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। चलो कम से कम उन लोगों ने इस बात का तो इकरार कर लिया कि ये सारी चीजें अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन नासमझ लोगों का क्या करें कि जब ये मान रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, तो फिर इबादत भी तो उसी की करनी चाहिए थी, उसी की इबादत होनी चाहिए थी। मगर इनका मामला ही उल्टा है। सब कुछ मानने के बावजूद भी अल्लाह को छोड़कर ये मुशरिकीन दूसरों की इबादत करते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जब उसी परवरदिगार ने आसमानों को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, तो वही तो उनका मालिक भी होगा। वो सिर्फ आसमानों और जमीन ही का मालिक नहीं, बल्कि जो कुछ भी उन दोनों में मौजूद है, जितनी चीजें जमीन में मौजूद हैं और जितनी चीजें आसमान में मौजूद हैं, और उन दोनों के दरमियान में फिजाओं में जितनी चीजें हैं, उन सब का खालिक भी वही अल्लाह है, उन सब का मालिक भी वही परवरदिगार है। और जाबिता यह है कि जो आका होता है उसी का हुक्म चलता है, उसी का कहा माना जाता है। मगर तुमने ऐ काफिरों इस जाबिते की खिलाफ वर्जी की है। याद रखो, इस खिलाफ वर्जी का मजा तुम्हें क़यामत के दिन जरूर चखना है। और रही बात तुम्हारे इबादत करने और न करने की, तो इससे अल्लाह तबारक व तआला का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेनियाज है। वो तुम्हारी इबादत का मोहताज नहीं है, तुम्हारी इबादत की उसको कोई जरूरत नहीं है। वो तो बजाते खुद ही तारीफ के काबिल है। तुम तारीफ करो या न करो, उसकी शान में जर्रा बराबर भी फर्क आने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितने भी दरख्त हैं, अगर सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए और इन सारे समंदरों को और इन समंदरों के अलावा और इन जैसे 7 समंदरों को सियाही बनाकर उन कलमों से जो दरख्तों को कलम बनाया जाए, सारे उन अल्लाह ताला की तारीफ लिखने बैठ जाओ तो सारी सियाही खत्म हो जाएगी, सारे कलम खत्म हो जाएंगे। मगर इसके बावजूद रब्बे ज़ुल जलाल की तारीफ मुकम्मल नहीं होगी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह आयत यहूदियों से बहस व मुबाहसे के वक्त में नाजिल हुई, जैसा कि तफसीर तिबरी में लिखा हुआ है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि यहूद के उलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि ए मोहम्मद, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, इससे क्या मुराद है? इससे तुम्हारी मुराद लोग हैं या तुम्हारी कौम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप इस किताब में नहीं पढ़ते जो आपके पास भेजी गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम यहूदियों को तौरात दी जिसमें हर चीज की वजाहत मौजूद है? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो अल्लाह के इल्म का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जिस पर यह आयत नाजिल हुई।
अलगज़, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऊंची शान वाला है कि तुम्हारे तारीफ करने और न करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता फर्क तुम्हें पड़ेगा और सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। वो अल्लाह ताला ऐसा गलबे वाला और ताकतवर है कि कोई उसे आजिज नहीं कर सकता और न ही उसे कोई हरा सकता है। वो ऐसी हिकमत वाला है कि उसके इल्म से कोई चीज छुपी हुई नहीं है, कोई चीज उसकी हिकमत से बाहर नहीं है। उनको फार का जवाब है जो ये कहा करते थे, आगे बयान किया जा रहा है कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दे रहे हैं, देखो तुम सबको पैदा करना, तुम सबको, पूरे इंसानों को पैदा करना, उसके बाद तुम सबको मौत देकर दोबारा तुम सबको जिंदा करना। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमारे लिए ऐसा ही है जैसा कि किसी एक आदमी को पैदा करना और उसे दोबारा जिंदा करना। यानी हमें इस काम के अंजाम देने में कोई मशक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। ये सारे काम हमारे लिए बिल्कुल आसान है। अल्लाह तबारक व तआला उन मुशरिकीन की बातों को सुन रहा है जो अल्लाह के बारे में झूठी बातें कहते हैं, इन्हें अल्लाह ताला के साथ दूसरे माबूदों को शरीक कर रहे हैं, और उनके आमाले बद को भी अल्लाह तबारक व तआला अच्छी तरह देख रहा है, जिनकी वो कल क़यामत के दिन उन्हें सजा देगा। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात की हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।